Hello, sir. ठीक है, we can end the activity now. How was the activity? So कैसी थी good, activity? sir. हम्म। So good. For me, क्या so सीखा good. आज? Today I will learn something new for me. For make a word very easily for me. हम्म। Now I was make a sentence very easily. हम्म। So now I am confident to make a sentence. Sir. ओके। Now I am not stuck, sir. I am not stuck. I was making a sentence continuously. I am not stuck. Very nice. Now you're also, I see you're using the right tenses on your own. Some of your tenses still need some improvement, but some of your tenses you are making them correctly. So good job on the improvement. The more you do this, the better you'll become. You have tomorrow and the day after as leave, Saturday, Sunday. So do the tenses one and the preposition both as much as you can. Yes, Gitika. sir. In module one or module two grammar part, I Hmm. will also read a grammar part where the is am are कहाँ पर is am are लगता है कहाँ पर was Yeah. were लगता Hmm. है टेंसेस को मैं पढ़ती हूँ कहाँ पर हैज बीन लग रहा है कहाँ पर नहीं Cool. लग रहा वो मैं पढ़ ही रही हूँ Great. सर मैं जैसे Good मर्जी job. हो मैं Hmm. वेबसाइट से नहीं तो मैं कहीं और चीज पढ़ लेती हूँ मेरे पास इंग्लिश की बुक्स भी है जो मैं टेंसेस ही पढ़ रही हूँ मैं कुछ और प्रेपोजिशन टेंसेस ही पढ़ रही हूँ मैं कुछ और पढ़ ही नहीं रही हूँ Okay. That's good. Great. Yeah. Yes, Disha and Aarti. Aarti, आप बताओ पहले. How was the session and activities? So the session was, and if I'm Session was what? talking, आपकी आवाज चली गई. so the session a little bit nice, Hmm. and if I'm talking about prepositions, Hmm. it was because of some tough words in but the tenses was good for me, and Okay. it was a little bit, matlab, sorry, it was nice as Okay. comparison to prepositions. Okay. So you're saying you were able to make the sentences from tenses activity, but you're facing some struggle with the prepositions basically. Yes, And sir. that's okay. That's exactly why we are doing it. Some people might be good with prepositions, some might be good with tenses, some might be bad with both. This is why we have to practice a lot, right? Hello, Disha. Hello, sir. How are you? Good, sir. Okay. How was the activity for you? आपने क्या सीखा आज? Good, sir. Today I was learn many words and today I was learn many words and doing practice more for sentence. हम्म. सो आपके हिसाब से दिशा आप क्या सीखने को मिल रहा है आपको ये टेंसेस एंड प्रीपोजिशन वाली एक्टिविटी से? Uh, in from this in this game I was making fulfill sentence. कंप्लीट सेंटेंसेस. Yes. ओके, नाउ क्या ये गेम आपकी हेल्प कर रहा है गाइस इन योर Yes. अदर इन योर Yes, नॉर्मल sir. प्रैक्टिकल लाइफ? Yes. कैसे Yes, yes दिशा sir. बताओ. Because sometimes we don't remember words, but for this game we for this help we understood of words and we making a sentence. वाओ, दिशा इज स्पीकिंग विदाउट गेटिंग स्टक. गुड जॉब दिशा. वाह आरती, हाँ आप बताइए, हाउ इज दिस हेल्पिंग यू? हाउ इज दिस गेम हेल्पिंग यू? द वर्ड So फ्लो गेम. with the help of this game, like word flow game, I'm uh, I'm not facing so much problem to watching videos and watching movies and watching series. So yeah, it helps me. ओके, दैट्स ग्रेट. गुड Yes, जॉब. sir. गीतिका, आपकी कैसे हेल्प हो रही है बिकॉज ऑफ दिस yes गेम? yes sir first of all I am not stuck now in all the words and I am completely continuously make a sentence very easily so I am now confident to make this and this help of this workflow game now I am continuously talk with the english in english with others
I'm not Okay. stuck. So yeah. She's speaking so fast. What happened to you, Gitika? Good job. I think now you guys are in the flow. इसको पता है क्या कहते हैं? इसको ना flow कहते हैं. Yeah. आपको पता है flow का मतलब क्या होता है? No, yes, so. जैसे रिवर का एक फ्लो होता है, वो बहती रहती है, तो दिमाग में ना एक फ्लो होता है. जब आप ये गेम 15 मिनट के बाद 10-15 मिनट तक जब भी कोई आप एक काम करते हो, 15-20 मिनट तक बैक टू बैक एक चीज करते रहते हो, 15 और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी और एक्टिविटी के, तो ब्रेन ना एक फ्लो में आ जाता है एंड बहुत आसान हो जाता है चीजों को कनेक्ट करना. तो अभी आप एक फ्लो में हो. 1 घंटे बाद अब सेशन खत्म हो जाएगा, वापस आप लोग हिंदी में बोलना शुरू कर दोगे, तो वो फ्लो टूटेगा वहां पे, फिर हिंदी का फ्लो आ जाएगा. Hmm. Like I'm speaking Hindi, but मेरा दोनों में flow है because I've spoken in Hindi and English a lot equally. Yes. So if you want your English flow to be maintained, you have to keep on doing these kind of activities again and again and again. Like after every half an hour, do it for 2 minutes. Nothing much, not too much. मतलब एक तो होगा कि हम एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट ले रहे हैं कि 1 घंटे का 1.5 घंटे का हमें डेली एक्टिविटीज करनी है मंडे से फ्राइडे. और जैसे टुमारो इज अ वीक ऑफ, हमारी छुट्टी है कल परसों, तो उसमें आप कुछ करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता. आई कैन नॉट कीप यू अकाउंटेबल, बट डू इट. पहली चीज तो 1 घंटा तो मिनिमम करो. मिनिमम 1 घंटा तो करना ही करना है ये वाली एक्टिविटीज. Yes, so. उसके अलावा टंग ट्विस्टर्स करने हैं आपको, अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है. राइट, वी हैव टू इम्प्रूव आवर प्रोनाउंसिएशन. उसके अलावा इनपुट हमारा ठीक होना चाहिए. इनपुट आता रहना चाहिए डेली हमारा, कहीं ना कहीं से इनपुट होना चाहिए. राइट, रिमेंबर इनपुट. वॉचिंग मूवीज, पॉडकास्ट, जो आपको देखना है वो देखो, बट इंग्लिश में देखो. कार्टून्स देखना है इंग्लिश में देखो. ट्रैवल देखना इंग्लिश में देखो. सेल्फ इंप्रूवमेंट देखना Yeah. इंग्लिश में देखो. क्रिकेट देखना इंग्लिश में सुनो. सर मैं अभी Yeah. कार्टून्स भी इंग्लिश में देख रही हूँ। बेस्ट है, कार्टून्स तो बेस्ट होते हैं बिकॉज उनकी इंग्लिश की लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है, और वही Cartoon. एक्चुअली बेस्ट होता है जो हमें यूज करना होता है. तो कार्टून्स देखना बेस्ट है. आप हंसोगे भी, मोटिवेटेड भी रहोगे, समझ भी सब कुछ आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी प्रोसेसिंग बढ़ेगी, आपकी मोटिवेशन वहां से आती है. तो दिशा आप अच्छा कर रहे हो, गुड कर रहे हो. धीरे सर धीरे मैं भी लेवल बढ़ाओ. देखती हूँ. गुड है, बेस्ट है. Sir, I was also see a horror movie, not Mhm. Hindi movie, English horror movie like Annabella, yeah, Conjuring, and Ouija board Conjuring. also. Conjuring. Conjuring, Yes. and yeah, sir, this horror movie I was seeing, so गुड है. जो भी आपको अच्छा लगता है वो देखो. जस्ट वॉच देम इन इंग्लिश. yes, राइट. so सो गुड जॉब गाइस, एंड बाय द वे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. हम रात को तो चलो yeah, विश कर देंगे व्हाट्सएप पे, बट इट्स इट्स गोइंग टू बी आवर same to इंडिपेंडेंस you, डे. sir. सो अ ग्रेट Yeah, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. yeah, कोई yeah, क्वेश्चंस है same to आपके? you, एनी sir. क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क अबाउट द सेशन, अबाउट preposition और एनीथिंग, टेंसेस? So I Any questions? Tell me. I also practice rephrasing also. I practice preposition, tenses, and rephrasing also, sir. Making Great है. I give to me a topic, one Mhm. topic, and I write not write first. I think and then I write a topic. The what the make of this sentence. तो हाउ इज दैट रीफ्रेजिंग? मतलब इसमें रीफ्रेजिंग क्या Not था? rephrasing, not rephrasing. No, यू सेड रीफ्रेजिंग. rephrasing. Yeah, sir. Yes, sir. Yes. Think before you speak. Okay, sir. Before you It's okay. speak. Sir, Yes, Aarti. So yeah. sir, I have a question. Mhm. In prepositions, beyond repair, beyond दोबारा repair, बोलेगा. repair, बियॉन्ड repair, रिफेयर. स्पेलिंग बताओ. repair, REPAIR. रिपेयर. रिफेयर नहीं, रिपेयर. सी दैट्स वेयर प्रोनाउंसिएशन कम्स इन, इसलिए हमें टंग ट्विस्टर Yes, भी जरूरत sir. नहीं करनी. वो ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो, रीडिंग में तो गलती होता है. बियॉन्ड रिपेयर, अब समझ आया. रिपेयर का मतलब पता है आपको? रिपेयर का मतलब कुछ ठीक करना. बियॉन्ड मतलब हाँ. उस चीज के बियॉन्ड, मतलब जो भी चीज की बात हो रही है इट्स बियॉन्ड रिपेयर, मतलब अब ये ठीक नहीं हो सकता. मतलब कोई चीज इतनी खराब हो गई कि इट्स बियॉन्ड रिपेयर, कि रिपेयर अब नहीं हो सकता. ये कहने का ये मतलब है. Hmm. समझ आया? Yes, sir. बियॉन्ड रिपेयर. कि मैं रिपेयर, example. कि रिपेयर जहां हाँ. खत्म हो जाता है उसके भी आगे की बात हो रही है, मतलब अब ये रिपेयर नहीं हो सकता बेसिकली. Hmm. बताओ, एग्जाम्पल बताओ. The phone is beyond repair. द फोन इज बियॉन्ड रिपेयर. परफेक्ट है.
देयर हेल्थ हैज डिटेरियोरेटेड सो मच दैट इट्स बियॉन्ड रिपेयर नाउ। किसी की हेल्थ इतनी खराब हो गई है दैट इट्स बियॉन्ड रिपेयर, अब ठीक नहीं हो सकती। जैसे किसी को कैंसर है, जल्दी पकड़ लो तो ठीक हो जाता है, बट लेट कर दो तो फिर दिक्कत होती है। राइट, हम्म। गुड जॉब आरती। एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, दिशा यू हैव एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस लाया करो गाइस, क्वेश्चंस नहीं लाओगे तो फिर कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगा। और मैंने देखा था कभी कभी बीच बीच में, जैसे दिशा एंड गीतिका, बीच बीच में आप लोग कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं बना रहे थे। आपको सेंटेंसेस Yeah. कंप्लीट बनाने हैं इस गेम में। इतना बड़ा वर्ड तो मैंने दे ही दिया, हैज बीन प्लेइंग, तो आपको कंप्लीट बनाना है। शी हैज बीन प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, ये आपको बनाना है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखो। और सर मैं जो सेंटेंस बना रही थी तो उसमें मिस्टेक्स थी क्या? हाँ, अभी हैं थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स, बट बहुत ज्यादा नहीं थी। जितनी मिस्टेक्स अभी हैं ये चल जाएंगी। इन कम्युनिकेशन इतना चलता है। कम्युनिकेशन में परफेक्ट नहीं होता कुछ भी, आपका मैसेज डिलीवर होना चाहिए। जो आप बोलना चाहते हो वो चीज डिलीवर होनी चाहिए, और वो इतना हो रहा था। बट हाँ, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, वो ठीक होंगी टाइम के साथ। आपको डेली ये करना पड़ेगा, डेली आपका इनपुट होना चाहिए। खाना नहीं खाओगे तो फिर एनर्जी नहीं होगी। खाना डेली खाना है। खाना क्या है? पॉडकास्ट, मूवीज, कार्टून्स। लोगों से बात करो इंग्लिश में 10-15 मिनट के लिए। एक बना लो कि 10-15 मिनट्स के लिए अजनबी लोगों से बात करनी है। कभी आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो जैसे कहीं मॉल में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो ट्राई टू टॉक टू समवन इन इंग्लिश। जैसे रिसेप्शन पे कोई है या फिर सेल्समैन है कोई, टॉक टू देम, हे हाउ आर यू, सिंपल। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस, पहले से ही सोच के रखो। 10-15 चीजें, ये चीजें मैं पूछ सकती हूँ उनसे, तो Yeah. सोच के रखो वो चीजें। प्राइस, यही चीजें होंगी, और क्या होगा, इसका प्राइस क्या है, इसका डिस्काउंट क्या है, ये कपड़ा है या नहीं है। तो 10-15 ना Hmm. क्वेश्चंस रेडी करके जाओ। कभी भी कहीं भी जा रहे हो, कि अच्छा आज मैं खाना खाने जा रही हूँ, मैं वेटर से 10 क्वेश्चंस क्या बातचीत कर सकती हूँ। अब 10 के 10 नहीं पूछने, 2-3 पूछ लो चाहे, पर एक कॉन्वर्सेशन हो जाएगी, आपका वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि यार किसी से इंग्लिश में बात करिए। आपके ब्रेन को एविडेंस चाहिए कि हाँ आपको इंग्लिश में बात करनी आती है, तो आपको अपने ब्रेन को एविडेंस देना पड़ेगा। Yeah. तो हमेशा ना कहीं भी जा रहे हो ना, सोच के जाओ यार एक अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ जा रही हूँ तो 10-15 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, यहाँ जा रही हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ तो 10-15 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। थोड़ा सा रेडी होके जाओ। रेडी होके जाओगे, खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा वो क्वेश्चन बोलने का। ऑन द स्पॉट सोचोगे अरे मेरे से इंग्लिश नहीं आ रही, नहीं आएगी। ऑन द स्पॉट बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा, एकदम से इंग्लिश नहीं आएगी। सब जो आती है वो भी भूल जाओगे। हम्म। ऐसा ही होता है, जो आती है वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए पहले से रेडी करके जाओ कि ये 10 क्वेश्चन हॉस्पिटल के हो गए, ये 10 क्वेश्चन यहाँ के हो गए, ये 10 क्वेश्चन यहाँ के हुए। तो रेडी करके जाया करो, हमेशा प्रिपेयर्ड रह के जाया करो। चाहे स्कूल जा रहे हो, चाहे किसी अपने सिस्टर के लिए, ब्रदर के लिए स्कूल जा रहे हो, टीचर से मीटिंग है, 5-10 क्वेश्चन सोच के जाओ कि यार ये इंग्लिश में ये पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाओ हमेशा। ठीक है, Yeah. समझ आया? Yeah, sir. यस सर। ठीक है, अब सैटरडे संडे आपका होमवर्क है कि आपको वर्ड फ्लो ये दोनों गेम्स करनी है, टेंसेस एंड preposition। इनपुट अलग है, ये आपका होमवर्क है। डेली Okay. कम से कम 1 घंटा नहीं तो मिनिमम 30 से 45 मिनट्स तो करना ही करना है। Okay. मंडे को हम करेंगे, ये और बेटर होनी चाहिए, आपकी जो एक्टिविटी हो रही है ये और बेटर होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। इसके अलावा कोई आपका फ्रेंड है जो ज्वाइन करना चाहता है गाइस सेशंस? एनीवन यू नो मैं तो हु सर, माइट वांट टू सर ज्वाइन? मेरा तो छोड़ नॉट दो, येट सर। मैं तो छोड़ ही दो सर, कोई करना ही नहीं चाहता, किसी को शौक ही नहीं है, मैं फिर बोलना ही छोड़ दिया, मैं कहा मत ही करो, तो अच्छा ही है। बस कोई मैं दिक्कत नहीं है। कहता, आई कांट रिक्वेस्ट टू माई बेस्ट फ्रेंड सर, मैं रिक्वेस्ट नहीं हाँ, कर रिक्वेस्ट सकती नहीं करना है, क्योंकि इट्स ओके, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ अगर कोई हाँ, है तो, ऐसे कोई फोर्स नहीं करना हमने किसी हाँ, को, हाँ। क्योंकि अरे ये सर, इंग्लिश लैंग्वेज है। by the way sir, I am talking with my teachers, university teachers in English sir, ओके, दैट्स वेरी नाइस। and yeah sir, and कैसा एक्सपीरियंस है आपका उसमें? so good sir. I हम्म। gave my PTT जिसमें फर्स्ट आई हूँ, उसमें ओके। मैंने टीचर के साथ हिंदी में कन्वर्सेशन नहीं की, मैं तो मैंने हम्म। इंग्लिश में ही है, इंग्लिश में। मेरी मम्मी भी हैरान हो गई कि तू कॉन्फिडेंस से इंग्लिश में बात की मैडम से, तू घबराई भी नहीं, तू स्टक भी नहीं हुआ, तो उस वक्त मैं मैडम को इंग्लिश में ही हंसाती रही। हमें याद है 3 महीने वाली पहले वाली गीति का, याद है हमें, ऐसे घबराती थी, इंटरव्यू है सर मेरा आज, सर क्या करूं मैं, लाइक ओके हो जाएगा, शांति रखो, भी टाइम लगेगा ठीक नहीं है, होने में। अब नहीं है, याद है आपको? अब नहीं है। बहुत सर, मैं बहुत ज्यादा घबराती थी सर,
कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब नहीं सर, अब तो पता कि हो जाएगा। अब अब ये अभी फुल नहीं है सर कि कॉन्फिडेंस मेरा है। चांस है, मेरा हाँ देख, इंटरव्यू है ना। पर अभी तो आपको 6 महीने हैं, आपने बोला था। हाँ। हो हो जाएगा। जाएगा। आप अच्छा कर रहे हो दिशा, डेली आ रहे हो। सबसे अच्छी चीज ये होती है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है। डेली आते रहोगे। गीतिका ने भी पिछले 2-3 महीने में ही मेन एफर्ट्स डाले जो डाले हैं, तो उसी में सारा इंप्रूवमेंट आया है जो आया। राइट। आप तो ऑलरेडी डाल रहे हो, तो आपका भी आ जाएगा बहुत जल्दी। बाद में अगर इंटरव्यू ट्रेनिंग की स्पेसिफिक नीड होगी तो वो भी हम अलग से बात कर लेंगे, इंटरव्यूज की एंड ऑल जो एडवांस चीजें होती हैं थोड़ा। बट पहले हमें लैंग्वेज पे अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। यस। अगर आपका लैंग्वेज पे अच्छा कंट्रोल है तो इंटरव्यूज आप निकाल पाओगे अपने आप भी। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो फिर हम इंटरव्यू ट्रेनिंग अलग से कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर जिनका लैंग्वेज पे अच्छा कंट्रोल, इसलिए हम कम्युनिकेशन सिखाते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश नहीं सिखा रहे कि ग्रामर पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। हम यहाँ पे प्रॉपर आपको कॉम्प्रिहेंशन सिखा रहे हैं कि जो भी इंटरव्यू वाला बोलेगा आपको समझ आना चाहिए पहले। या। आपको समझ नहीं आएगा तो आप गलत रिस्पॉन्ड करोगे। आपको समझ आएगा तो नेचुरली आप सही सोचोगे और सही बोलोगे। तो हम आपके बेसिक्स ही सही करवा रहे हैं। और बेसिक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनके बेसिक्स सही होंगे वो इवेंचुअली सही तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, कपड़े सही पहनने हैं। अगली बार या सर। नहीं करोगे फिर मैं ये बोलूंगा जाओ कपड़े चेंज कर कर आओ। क्या राइट। सर। सर अब ये है कि मेरा, अब इंटरव्यू देने गई तो मुझे पता है कि प्रिंसिपल ने क्या पूछना है, उसकी तो मैं पहले ही तैयारी की थी। पहले ही पता होगा कि क्या आंसर देना है, वो भी इंग्लिश में। मुझे एग्जैक्टली, पता बट है कि फिर भी फिर मैंने, प्रिपेयर करके जाना, फिर भी प्रिपेयर करके जाना इंटरव्यू। कि बिना प्रिपेयर के तो कुछ भी नहीं कर सकती सर, प्रिपेयर तो पहले करना ही। कर तो सकते हो बिना करके प्रिपेयर करे प्रिपेयर। भी, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। प्रिपेयर करके जाओगे तो यूल फील मच मोर कॉन्फिडेंट। हाँ ये तो पता है सर कि क्या पूछेंगे, पर ये नहीं कि अपनी तरफ से। एग्जैक्टली। ठीक है गाइस, इंडिपेंडेंस डे बनाइए। ओके कोई सर। क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, वरना एंजॉय योर वीकेंड, पार्टी करिए ओके सर। फैमिली